You can paint whatever you want to paint. The brush is in your hands. ये छोटा सा सीड होता है आपके अंदर जो आप सोचते हैं मैं बड़ा हो कि ये बनूंगा या बनूंगी. If you are going to re-own your power and get what you really want out of life, तो हमें ये चीज़ें बोलना बंद करना होगा. जैसे कि I don't know, I don't care और मेरे लिए मायने नहीं रखता. This is the kind of house that I want. This is the kind of job and the requirements and the job description that I want. New skills सीखनी पड़ेगी to expand our version of what's possible. You want to set a goal that should be big enough, which in the process of achieving it, you become someone worth becoming. हेलो एवरीवन. व्हेन वी गेट स्टार्टेड, कोई भी नया प्रोजेक्ट नया काम शुरू करते हैं तो हम एक रास्ता बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं और वो मैप हमें दो चीज़ें दिखाता है. वो मैप डालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है. फर्स्ट थिंग नंबर 1 इज़ where you are currently. You need to know that. अभी मैं कहाँ पे हूँ. Then second thing is to know where I want to go. मुझे जाना कहाँ है, right? So it's a very essential. These two steps are very important कि करंट हम असेसमेंट करेंगे आप कहाँ है हम रिगार्डिंग टू आवर फाइनेंसेस एंड वेल्थ एंड मनी, एंड देन वी नीड टू क्रिएट अ रोड मैप टू गो वेयर वी रियली वांट टू गो. लेकिन उसके पहले हमें जानना होता है वेयर इज इट दैट वी वांट टू गो. What is the kind of person we want to be? What are the kind of things we want to do? And what are the things we want to have? ये be, do और have को define करना बहुत ही ज़रूरी होता है so that you know where to go. So let's assume कि आज है ना अपनी लाइफ को एक clean slate के जैसे देखते हैं. Let's imagine, you know, for a moment just imagine your life is a clean slate. It's there in front of you, right in front of you. और वहाँ पे आपको जो चित्र बनाना है आप बना सकते हो. You can paint whatever you want to paint. The brush is in your hands. What then would you like to paint if you know that you could paint anything? What would you paint? ये आज decide करेंगे. So the thing is, you know, assessment करेंगे where we are and then we'll create goals to where we want to go. You know, when we are born, we all have this little seed inside of us, seed of that person that we want to become when we grow up. ये छोटा सा seed होता है आपके अंदर जो आप सोचते हैं मैं बड़ा हो कि ये बनूंगा या बनूंगी. But when, you know, in the process of growing up, बहुत सारे लेप लगते हैं by parents, by teachers, by elders, by all those people around us, जो ये छोटे से seed को दबा देते हैं. And that is why बहुत ही difficult होता है अपनी body की desires, अपनी body की जो requirements होती है, heart की जो desires होती है, उससे कनेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज लेप जो हमारे ऊपर लगते रहते हैं. दीज आर द थिंग्स, यू नो, विच स्टॉप अस फ्रॉम रियली अचीविंग व्हाट वी वांट टू अचीव इन द फर्स्ट प्लेस. और ये प्रोसेस में हम वो करते रहते हैं जो दूसरों को खुश करता है. आई मीन वी डू थिंग्स दैट विल प्लीज other people, please people around us, our loved ones, our families and friends. जैसे कि कोई मेडिकल स्कूल में इसलिए जाता है because his or her father wanted her to do so. कोई शादी किसी इसलिए करता है because उसकी माँ चाहती थी कि you know you should get married to so and so person. और आपकी ड्रीम जॉब so called, you know, रियल जॉब इसलिए ले लेते हो क्योंकि आपका जो ड्रीम करियर है आर्ट्स में या कोई और सब्जेक्ट में, एक्टिंग में वगैरह, आप नहीं परस्यू कर सके because people did not want you to pursue that. और maybe you had to immediately go to college without taking a break to backpack through your favorite European country because आपको करना पड़ा. कितनी सारी चीज़ें हम करते हैं just because we want to please other people, and in that process we really kill that seed within us that would have grown into a beautiful and a very different person that you are today. तो you know होता क्या है, in the name of being sensible we end up becoming numb to our own desires. No wonder, you know, आजकल teenagers को पूछेंगे भाई तुम्हें बड़ा हो के क्या बनना है, the standard answer that you get is I don't know or I'm not sure. ऐसा क्यों होता है? Why are they not sure? Because इतने लेप हमने लगाया है उन पे that they are not able to recognize and dwell into their desires at all. There are way too many layers of shoulds and ought tos that are piled upon them one after the other that their desires get lost in the whole process. So it is time to reclaim yourself and your true desires. यही समय है कि we get back to what we really want with no fear, shame और inhibition. ज़रा भी शर्म और झिझक के बिना let's get back to what we really want in life. और finally यही समय है कि हम अपनी real passion के साथ reconnect कर पाएं. So आपको क्या लगता है? How do we get started? You know, सबसे smallest level पे अगर हमें शुरू करना है then we have to begin by honoring our preferences. हमें क्या चाहिए
ये चीज़ को पहले हमें ऑनर करना चाहिए एंड वी शुड रियली डू दिस इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल। कोई भी चीज़ को पेटी या छोटा नहीं समझना है। मे बी किसी और के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू री ओन योर पावर एंड गेट व्हाट यू रियली वांट आउट ऑफ लाइफ, तो हमें ये चीज़ें बोलना बंद करना होगा, जैसे कि आई डोंट नो, आई डोंट केयर और मेरे लिए मायने नहीं रखता। एंड you know, whenever you're confronted with a choice, no matter how small or insignificant it may be, हमें ऐसी एक्ट करना है जैसे कि we have a preference. So how about instead of saying I don't know, let's say if I did know, what would it be? Instead of saying I don't care, let's say if I did care, what would I prefer? And instead of saying कि it doesn't matter to me, वाई नॉट हमें अपने आप से ये पूछे कि अगर मुझे मैटर करता है तो मैं इसके बारे में क्या करूँगी। Whenever we are not clear about what we want and whenever we make other people's needs and desires more important than our own, ये एक सिंपली एक हैबिट बन जाती है दोस्तों। एंड इट्स सिंपली हैबिट। हम ये हैबिट को तोड़ सकते हैं। कैसे? By practicing the opposite habit. And the opposite habit is that of knowing what you really want. अपने आप को प्रेफरेंस देना सीखते हैं rather than आजू बाजू के लोगों को प्रेफरेंस देना, राइट? सो एक 2 स्टेप मेथड से सीखते हैं, वेरी सिंपल 2 स्टेप मेथड, एंड लेट्स सी व्हाट इट इज। स्टेप नंबर 1 इज टू नो वेयर वी आर फाइनेंशियली। अपना जो अपने जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है फाइनेंशियली और वेल्थ वाइज, उसका एक असेसमेंट करते हैं। हमें अगर अपनी वेल्थ पे मैस्ट्री चाहिए तो एक वेल्थ और फाइनेंसेस का असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस एरिया में अभी कहाँ हैं, वेयर आर वी इन रिगार्ड्स टू वेल्थ एंड फाइनेंसेस। तो सबसे पहले डू दिस एक्सरसाइज, टेक अ ब्लैंक पेज इन अ बुक। सबसे पहले ऊपर लिखिए कि व्हाट आर माई सेविंग्स, मेरे सेविंग्स कितने हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर माई इन्वेस्टमेंट्स, मैंने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ कर रखे हैं। घर है, ज्वेलरी है, म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड ETFs है, एसेट्स है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स है मेरे। थर्ड इज मेक अ लिस्ट ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। आपकी मंथली इनकम क्या है और उसके सामने एक्सपेंसेस क्या है। अगर आप एक से ज़्यादा जन कमा रहे हो फैमिली में तो जॉइंट इनकम भी लिखिए कि सिंगल इंडिविजुअल इनकम इतनी है, जॉइंट इनकम इतनी है और एक्सपेंसेस इतने हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, राइट डाउन व्हाट आर द सेविंग्स फॉर फैमिली एंड किड्स। बच्चों के एजुकेशन के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, कोई बड़े से एसेट के लिए, कार, ट्रिप वगैरह, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पैसे सेव करके रखे हैं। एंड देन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर टोटल एसेट्स। जब हम दिस कॉल्ड assessing your financial situation and of course subtract the debts out of this figure. एक नज़र ये पूरे उस पर डालिए और फिर सोचिए कि आपको क्या लगता है देख के, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से कितने सेटिस्फाइड हो। एंड देन आई वांट टू रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। 1 बीइंग कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रही है, यू नॉट हैप्पी अबाउट इट, और आपको सच्ची ऐसा लग रहा है दैट यू कुड हैव डन मच बेटर देन दिस, आप काफ़ी और कुछ बेटर कर सकते थे इसमें। और लेवल 10 तक जाइए इफ़ यू फील दैट दिस इज द बेस्ट। आपने परफेक्टली अपना फाइनेंशियल प्लान बनाया है, संवारा है और आप बहुत ही खुश है फाइनेंशियल प्लान से। जस्ट रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। और जब भी आप ये फाइनेंशियल असेसमेंट कर रहे हैं तो ये ज़रा भी नहीं सोचिए दैट आई एम अ वुमन, आई हैव नॉट येट really entered into an active discussion about these finances. How do I rate myself? Don't you ever think that way, because you never know. And when I say you never know, you literally never know. एक बढ़िया सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। We do this program. It's an introductory program called Anybody Can Trade. ये प्रोग्राम स्टार्टर्स और बिगिनर्स के लिए है कि कैसे आप एक न्यू कमर या न्यूबी होके हुए भी, शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हुए भी, आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके अपनी पैरेलल इनकम बनाना सीख सकते हो। दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट दैट। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था नया तभी ऑन एन एवरेज हर 100 पार्टिसिपेंट में से 3 या 4 वुमेन पार्टिसिपेंट्स होती थी, और वो देख के मुझे बड़ा ही दर्द होता था, ऐसे इतने सारे मेन और इतनी कम वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन यू नो व्हाट, द सिनेरियो इज सो डिफरेंट राइट नाउ। अभी ऑन एन एवरेज वैसे तो 2-3 हज़ार लोग अटेंड करते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज एवरी 100 पार्टिसिपेंट्स में से more than 30 or 40 of them are women participants. This makes me so happy to know that.
तो ये ऐसा times are changing. Women are now increasingly participating in wealth conversations. उनका financial assessment क्या है, कहाँ पे है financially और कहाँ जा सकते हैं, and they are one of the active participants in really changing the face of their finances for their families. Generation से नहीं हो पा रहा है लेकिन अभी हो रहा है अपनी country में. Of course it was prevalent in the West earlier, but now even women in our country are waking up to this, and which is such a wonderful thing, right? So what we just made was our present financial scenario. Now let's talk about the future. The best way to get to where you want to go is to create the future that you want. इसीलिए जब हम future की बात करते हैं, we do not think about our past. Because future तो हम वो बना सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, right? And so future can be anything that you want. So I want you to think wildly and I want you to think vividly. So step number 2 that will take us towards our future is to set goals. कोई specific measurable goal set करेंगे, objective set करेंगे और फिर उन पे act करेंगे certainty के साथ कि हम वो achieve कर ही लेंगे. जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है इट्स अ गोल सीकिंग ऑर्गेनिज्म. सो व्हाटएवर गोल यू गिव टू योर सबकॉन्शियस माइंड, इट विल वर्क नाइट एंड डे टू अचीव दैट गोल. So how do you get started with goal setting? सबसे पहली चीज़, first thing and the best thing to do is to be really specific. Specifically लिखना है how much do you need, how much of what you need and by when you need it. सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से समझेंगे तो वेट लॉस से समझते हैं. जस्ट मेकिंग अ जेनरिक स्टेटमेंट कि मैं वेट लूज करूंगी इज नॉट गुड इनफ. मेकिंग अ स्टेटमेंट स्पेसिफिक एंड मेजरेबल लाइक दिस विच सेज दैट I'm going to lose 10 kgs by 30th April, that's the ideal specific goal. Because हमें गोल बनाना है, कोई कुछ आइडियाज नहीं डिस्कस करना है. वेट लॉस इज अ गुड आइडिया बट लूजिंग x kgs by x date इज अ गोल, राइट? एंड ये गोल सेटिंग में एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ जो काम करती है वो होती है हमारा सबकॉन्शियस माइंड. और वो एंगेज करने के लिए, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड गोल से एंगेज हो, उसके लिए गोल मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी होता है. सो मेक इट रियली स्पेसिफिक. सेकेंडली, राइट डाउन योर गोल्स. लिखिए, अपने गोल पे क्लैरिटी पाइए और मेक इट एज डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक एज यू कैन. जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे रहे हो या वर्क ऑर्डर दे रहे हो, इतना स्पेसिफिकली लिखिए. ऐसे सोचिए कि आपका गोल एक रिक्वेस्ट है भगवान से या यूनिवर्स से. सो बी रियली माइंडफुल अबाउट एवरी पॉसिबल डिटेल दैट यू इंक्लूड. जैसे कोई you want a home or you want a job, you want to go for a specific holiday, चाहे जो भी आपका गोल हो, कोई asset create करना है, whatever, be very specific. This is the kind of house that I want, this is the kind of job and the requirements and the job description that I want, etc etc. जब भी आप ये सब लिखते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझता है कि मुझे किस चीज़ पे काम करना है. It will really know which opportunities to capture. मुझे कौन सी opportunities capture करनी है so that I can help you reach that goal. It's that simple. So point number 2 is write it down. Thirdly, ऐसे goals बनाइए जो आपको stretch कर सके. Easy goals set करके कोई फायदा नहीं. It's not going to take you anywhere. Set goals. Those are way bigger than you think you are. So when you create goals, be sure to write down those that, number 1, they stretch you. Number 2, they require you to grow to achieve those goals. आपका एक बढ़िया सा वर्जन निकलना चाहिए बाहर वो गोल अचीव करने के प्रोसेस में. And number 3, and the most important, those goals should make you uncomfortable. Uncomfortable बनाने चाहिए, डर लगना चाहिए वो गोल से. क्यों? Because the ultimate goal अपना human beings का यही होता है. In addition to achieving a material goal, the ultimate thing is to become a master at life. And to do this, we need to learn new skills. न्यू स्किल्स सीखनी पड़ेगी टू एक्सपांड आवर वर्जन ऑफ व्हाट्स पॉसिबल. वी नीड टू बिल्ड न्यू रिलेशनशिप, वी नीड टू ओवरकम आवर फियर्स एंड आवर रोड ब्लॉक्स, राइट? जैसे कि जिम रॉन, मेरे पर्सनल डेवलपमेंट मेंटर, कहते हैं यू वांट टू सेट अ गोल दैट शुड बी बिग इनफ which in the process of achieving it you become someone worth becoming. How beautiful is that? So think कि वो गोल अचीव करके आप किस टाइप के पर्सन बन जाओगे rather than आप क्या अचीव कर पाओगे.
एनीथिंग, अगर आप अपनी लाइफ में भी पीछे देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि कोई गोल आपने सेट किया था वो अचीव तो हुआ, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट द प्राइमरी थिंग इज वो अचीव करने में आपको कितनी सारी स्किल्स सीखनी पड़ी, आप अपने आप कैसे चेंज हो गए, आप अपने आप के कैसे बेटर वर्जन बन गए, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। मुझे इस बात को लेके स्मिता याद आती है। स्मिता इज़ वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु इज़ पार्ट ऑफ आवर 1 ईयर कोचिंग प्रोग्राम। वो पहले एनीबॉडी कैन ट्रेड प्रोग्राम में आई, वहाँ से उन्होंने 1 ईयर की कोचिंग शुरू की। शी वॉज अ मदर ऑफ 2 kids व्हेन शी गॉट स्टार्टेड एंड शी वॉज अ होम मेकर। शी अर्लियर पहले जॉब करती थी, फिर उन्होंने जॉब छोड़ के अपना घर संभालती थी 2 बच्चों के साथ, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी एट वॉट शी वॉज डूइंग इन हर लाइफ। बट समवेयर शी ऑलवेज थॉट समथिंग इज मिसिंग। व्हेन शी स्टार्टेड ट्रेडिंग, जैसे ही उनका एक फाइनेंशियल वो बनता गया, शी स्टार्टेड क्रिएटिंग पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फॉर हर ऑल टुगेदर। और जब भी उन्होंने शेयर किया कि नाउ आई फील दैट आई हैव एन आइडेंटिटी टू इन माई फैमिली, आई फील दैट आई एम अ कॉन्ट्रीब्यूटर और मेरी भी कुछ पहचान है। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल शेयरिंग दैट आई हर्ड फ्रॉम हर। इट वॉज नॉट दैट शी वॉज अनहैप्पी, बट समवेयर शी फेल्ट दैट उसकी कहीं आइडेंटिटी गुम हो रही है। नाउ शी फेल्ट सो इंडिपेंडेंट, शी फेल्ट एज इफ शी इज क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ हर डिजायर्स एंड her dreams. So this is what happens, when you really bring in the magic of the goal and get started and learn new skills and become the person, the best version that you can become. स्मिता को नहीं पता था कि उसके अंदर एक ऐसी woman भी छुपी हुई है who has the capability to stand on her own feet and create the identity that she wants to create. Live a life of her dreams and desires. So this is what it does to you. जो पैसे उसने कमाए, जो wealth उन्होंने create की, that's a secondary thing, लेकिन primarily उन्होंने अपनी strengths discover की कि उनके अंदर क्या छुपा हुआ है. This is what the magic does. And fourth and the very important thing is अपने गोल्स को रिविजिट कीजिए, बार बार कीप रिविजिटिंग देम। एक बार अपने गोल्स लिख लेते हो, नेक्स्ट इज अपने क्रिएटिव पावर्स जो होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के, उसको एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू रिव्यू योर लिस्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। टेक द टाइम टू रीड योर लिस्ट ऑफ गोल्स। अपना टाइम लीजिए अपने गोल्स पढ़ने के लिए। यू मे इवन रीड देम अलाउड, बार बार रीड कर सकते अपने गोल्स। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करके पिक्चर कीजिए ईच गोल एज इफ इट वर ऑलरेडी अकम्प्लिश, जैसे कि वो गोल्स मीट हो चुके हैं। टेक अ फ्यू मोर सेकेंड्स टू फील व्हाट इट फील्स इफ यू हैव ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड ईच गोल। ये डेली डिसिप्लिन जो होता है, ये क्या करता है, इट्स रियली मैजिकल। इट एक्टिवेट्स द पावर ऑफ योर डिजायर्स। और ये जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक स्ट्रक्चरल टेंशन इंक्रीज करता है हमारे ब्रेन में, सो दैट अपना ब्रेन विल क्लोज द गैप बिटवीन वेर यू आर, योर करंट रियलिटी, टू द विजन ऑफ योर गोल। आप अभी कहाँ है टू आपको कहाँ जाना है। ये जो गैप है ना, ये गैप को बंद करने में मदद करता है। सो बाय कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग एंड विजुअलाइजिंग योर गोल, you are increasing the structural tension. You may even choose to put your goals into your daily planner or your calendar. या तो अपना सबसे इजी अपना मोबाइल फ़ोन 24 घंटे एक्सेसिबल है, मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन सेवर कर दीजिए। ये आइडिया मुझे एक स्टूडेंट ने दिया और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये आइडिया। हमारे 1 ईयर कोचिंग स्टूडेंट है, ही केम टू सी अस इन मुंबई फ्रॉम बैंगलोर। ही सेड कि बहुत ही अच्छे तरीके से उनका ट्रेडिंग जर्नल दिखाया, where he said I'm making good amount of profits, and when I appreciated him he said मैम दिस वाज समथिंग विच वाज इन माई गोल लिस्ट और मैंने हासिल किया। अगेन आई अप्रिशिएटेड, आई सेड बहुत ही बढ़िया बात है। ही सेड मेरा जो गोल था ऑलवेज मेरे सामने रहता है 24 घंटा। आई सेड वो कैसे? तो उन्होंने बताया ये मेरा स्क्रीन सेवर, उन्होंने दिखाया मुझे, ये जैसे मोबाइल उठा तो मेरा गोल सामने दिखता है। बार बार वो गोल को देख के उसको मैंने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, विच वॉज सो ब्यूटिफुल, राइट? सो द आइडिया इज़ टू हैव योर गोल्स कॉन्स्टेंटली इन फ्रंट ऑफ यू। अपने सामने ही गोल रखने हैं, और वो करते करते सुने यू रियलाइज़ कि वो गोल कब रियलिटी में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत ही important, one more brilliant example I remember about this is that of Bruce Lee. Bruce Lee एक बढ़िया से मार्शल आर्ट्स ट्रेनर थे, एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, और बहुत ही वर्ल्ड फेमस उन्होंने नाम क्रिएट किया था अपने लिए।
He wrote a letter to himself. It was kind of goal that he set for himself. उन्होंने अपने आप को एक letter लिखा था 1970 में, way before he actually got his name got actually bigger. उन्होंने letter लिखा था अपने आप को जो बहुत ही high amount पे then it got auctioned, and that letter so beautifully laid out what he saw for himself, what he visualized for himself, जो goal उन्होंने अपने आप के लिए set किया था. ये है वो letter जो आप screen पे देख रहे हो, and it reads like this: My definite chief aim. I, Bruce Lee, will be the first highest paid Oriental superstar in the United States. In return, I will give the most exciting performances and render the best of quality in the capacity of an actor. Starting 1970, I will achieve worldwide fame, and from then onward till the end of 1980, I will have in my possession $10,000 million. I will live the way I please and achieve inner harmony and happiness. Signed, Bruce Lee, 1969. ये लेटर उन्होंने अपने आप को लिखा था 1969 में, and then we all know what is the history, right? He went on to prove this a reality because उन्होंने पहले reality writing में he had created this for himself. So guys, this is really powerful. Goal setting process बहुत ही powerful है. I know कभी-कभी cliched sound करता है, but the thing is, what gives you the effective change in your life is these little small mundane things which we so often conveniently want to ignore, right? So go for it. Current assessment कीजिए और goal setting process में आगे जाइए. Do the work to see the difference, guys. I wish you joy and abundance in all you do.